आज का टॉपिक है सिमेट्री एस्पेक्ट्स ऑफ हाइब्रिड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या करते हैं हमें यहाँ पे देखना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप थ्योरी हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडेशन, विच हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। You have seen earlier in chemical bonding in first semester, we are talking about the different hybridizations. For example, there is sp3 hybridization, there is D2 sp3 hybridization, there is dsp3 hybridization. Different geometries have different hybridizations, but on the basis of energy, we have decided this symmetry is possible, this hybridization is possible, and this hybridization is not possible. I will give an example of one of the example. For example, in case of MnO4 negative, you know the hybridization of this molecule. This molecule has hybridization of Sd3, and similarly, if you see CH4, the hybridization is sp3. Both the geometries are tetrahedral, but why here we take the D and not P, and here we take the P not D? There are certain questions. तो उस टाइम जब हम देखते थे तो वहाँ पे आपको आंसर जो दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और सिंपली ये बोला जाता था कि दिस डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री। बट टुडे आप जाके इसको अच्छी तरह से समझ लोगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्री के हिसाब से हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, फिर हम बाकी पॉसिबिलिटीज को हम कैसे यहाँ पे नेग्लेक्ट करके the best possibility on the basis of symmetry as well as energy. Because as you know, on the basis of energy there are certain possibilities. Similarly, on the basis of symmetries there are certain possibilities of hybridization. You see, a number of times the hybridization is also PC. For example, there is a hybridization of sp2 also, but there is a hybridization of possibility on the basis of symmetry. PC is also a hybridization, but on the basis of energy it is not possible. तो इससे जाके फिर हम क्या करते हैं, हम उन हाइब्रिडेशन को लेते हैं दैट विल बी पॉसिबल ऑन बोथ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। बट टुडे आवर टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हम सिमेट्री को देखेंगे अच्छे से कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री विच हाइब्रिडेशन इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट पॉसिबल। किस तरीके से हम यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी है किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन है हाइब्रिडेशन पे। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पहले आपको यही समझना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो एग्जांपल हम लेंगे एग्जांपल टेट्राहेड्रल की। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हम पहले टेट्राहेड्रल की एग्जांपल लेंगे। तो टेट्राहेड्रल में एज यू नो कि टेट्राहेड्रल के केस में अगर आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होगा, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द मॉलिक्यूल ML4। ML4 means the geometry will be the molecule belonging to किसी का ये ऑन है जिस माइक, इसको बंद कीजिएगा। belonging to tetrahedral point group, TD point group. Okay, because ML4 may be a square planar, but here we take the example of tetrahedral. So there are several combinations of atomic orbital for these four equivalent hybrid orbitals. आपको जो मैं भी बता ही रहा था कि there are number of possibilities कि कौन सा यहाँ पे जाके atomic orbital will take part for hybrid orbitals, because when the number of atomic orbitals first combine, they will form equal number of hybrid orbitals. Similarly, अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे थे कार्बन है आपके पास है 2s2 2p2। तो हम यहाँ पे क्या बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो आपको याद होगा, जस्ट रिकॉल यू। तो आप क्या बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सर इसमें 2s2 है, ये 2p2 है, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डाइवैलेंट या बाइवैलेंट। बट हमें पता है कि होता क्या है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ little difference in the energy between 2s and 2p, one of the electron from 2s excited to the 2p। ये जब होता है यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्साइड इधर हुआ, अब यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि all the four orbitals have same energy as well as have same shape। याद रखना बेटा, all the four orbitals in case of this carbon
इसको हम अलग से ऐसे नहीं बोलते, अब इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए और दे हैव इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप। और शेप कैसी होती है? जनरली हम ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बनाते हैं। दिस इज शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट देयर आर सर्टेन possibilities are there in certain complexes or certain compounds in which there is a possibility of other hybridization also. So there which hybridization is possible वो हम यहाँ पे जाके देखेंगे बेटा। ये चीज आप इस पहले अंडरस्टैंड कर लो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो several combinations of atomic orbital, several combinations of atomic orbitals for these 4 equivalent, क्योंकि हमारे पास अभी 4 ही बनाने हैं टेट्राहेड्रल के, for 4 equivalent hybrid orbitals, ठीक है बेटा। 4 सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव देयर लोब्स, ये भी आप याद रखेंगे। जो इनके लोबस होंगे, क्योंकि जब इसकी ज्योमेट्री बनती है, जो इनके लोबस होंगे वो टुवर्ड्स द टेट्राहेड्रॉन होंगे, क्योंकि जब ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल की, फॉर एग्जांपल दिस कार्बन, जब इसका टेट्राहेड्रॉन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जो लोबस होंगे, लोबस की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द टेट्राहेड्रॉन, तब जाके ज्योमेट्री बन गया टेट्राहेड्रल, यहाँ से एच, यहाँ से एच, यहाँ से एच, यहाँ से एच। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूँ वो यही होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड के जो यहाँ पे जाके जो डायरेक्शन होगी लोबस की, वो कहाँ से होगी? 4 सिग्मा hybrid orbitals, 4 sigma hybrid orbitals have their lobes directed towards the corners of tetrahedron, TD, टेट्राहेड्रॉन पूरा लिखना, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको पहले लिखवा रहा हूँ, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, बट एग्जाम के लिए लिखवाना जरूरी पड़ता है। तो लेट हम यहाँ पे क्या जाके देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास M है, यहाँ पे L एंड L, दिस विल बी R1, दिस विल बी R2, दिस विल बी R3, दिस विल बी R4. Because at this time we are dealing with the hybrid orbitals, we know the hybrid orbital is towards the corner of the tetrahedron, तो हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो जनरली सिग्मा बॉन्ड ही यहाँ पे बना रही है, या तो वो लोन पेयर होगा, या तो हाइब्रिड, या तो सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे जाके दिस R1, क्योंकि हम इस वक्त इसको क्यों ले रहे हैं, वाई वी टेक द बॉन्ड वेक्टर हियर, बिकॉज we are dealing at this time with this bond, because हमें ये देखना है कि जो R1 है, जो ये बॉन्ड है, इसका क्या होने वाला है, हम इसके जरिए से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए जाके हमें ये चीज देखना होगा कि R1, R2, R3 हमारे लिए इस वक्त ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे आर नॉट द बॉन्ड्स, दे आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको क्या हम यहाँ पे जाके देखेंगे, लेट 4 सिग्मा ऑर्बिटल, 4 सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लिख सकते हो या सिग्मा ऑर्बिटल भी लिख सकते हो। सिग्मा ऑर्बिटल बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी के लिए मैं डायरेक्ट करूंगा सर, बी रिप्रेजेंटेड बाय R1, R2 and R3, R4 वेक्टर, ओके, गॉट दिस। तो यहाँ पे जाके हमारे पास अब जाके ये चीज रहा, दिस इज R1, दिस इज R2, R3, R4, ठीक है। बॉन्ड वेक्टर्स आर, these are the bond vectors. I am just checking how many students have joined this today's lecture. 10 students, okay, good, okay। अब देखिए, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, अभी वही चीजें, पुरानी चीजें मैंने रिपीट की। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म द इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, and the hybrid orbital is the direction of the hybrid orbital is towards the corner of the tetrahedron, ये तो आपको पता है।
and we represented the different sigma orbitals with the r1, r2, r3 and r4 vector. यहाँ तक आपका ये पता है, ये आप जानते हैं। अब हम वही बातें जो अभी तक आपने किया है उसी को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, वही जाके हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है, जो अभी तक आप करके आ रहे हो। टेट्राहेड्रल को आपको, अगर आपको इसका मैंने एक बार भेजा था पॉइंट ग्रुप के बारे में, मैंने एक आपको डायग्राम भेजी थी कि कहाँ से इसके C3 है, कहाँ से इसका C4 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल बट S4 इज प्रेजेंट। तो ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर इस लेक्चर में आएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह अगर टाइम मिला नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजिशन, बिकॉज उसका क्वेश्चन आता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। जिन्होंने फॉर्म भरा उनको काम में आएगा, बहुत सिंपल है वो 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप दिखा सकते हो ट्रांजिशन, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन हमेशा आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आई विल डिस्कस, उसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस ग्रुप थ्योरी नाउ। तो अगर आप देखेंगे बेटा इसमें टेट्राहेड्रल में क्या क्या होता है, ई होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो याद करेगा, सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को ये देखने में प्रॉब्लम है वो याद कर सकता है। 6 टाइम्स S4 होता है और यहाँ पे जाके 6 टाइम्स सिग्मा डी होता है, ठीक है, ये आपके पास होता है। अब देखिए क्या करना है, फिर से वही जो हम कर रहे थे, आपको निकालना क्या है, टाउ सिग्मा हम निकालेंगे डायरेक्टली, टाउ सिग्मा। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इन केस ऑफ दिस ई मीन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हम चारों के चारों जो वेक्टर हैं वो R1, R2, R3 R4, रिमेंबर दिस। आइडेंटिटी के केस में नथिंग टू डू, ऑपरेशन इज नथिंग टू डू, वी आर डूइंग नथिंग। इसका मतलब R1 रिमेन्स अनशिफ्टेड, R2 रिमेन्स अनशिफ्टेड, R3 रिमेन्स अनशिफ्टेड, R4 रिमेन्स अनशिफ्टेड। सो तो यहाँ पे चारों के चारों अनशिफ्टेड है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब C3 देखिए कहाँ से है, एक्चुअली C3 एक R1 के बीच में है। कितने टोटल C3 से बहुत सारे 8 टाइम C3 है, बट एवरी टाइम अगर आप देखेंगे एक C3 आप देखते जाओ यहाँ पे, अगर यहाँ से C3 डालेंगे बीच में, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप दिमाग में पहले लेके आओ, अगर यहाँ पे कोई बनाया हुआ होगा तो आई विल शो यू। टेट्राहेड्रल इज दिस, एक तो यहाँ पे है, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, आप इसको देख रहे हो, ठीक है। जहां से मैंने हाथ में पकड़ा है वहीं से आप एक्सिस डालो बीच में, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो C3 एक्सिस होगी, 120 डिग्री में रोटेट करूंगा, दैट इज द C3 एक्सिस। तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब देखिए, इसको पकड़ूंगा एक बार तो C3, फिर इसको पकड़ूंगा यहाँ से, एक को पकड़ूंगा, दूसरे को पकड़ूंगा, आपको दिखाई, आपको तो सिमिलर लगेगा। तो यहाँ पे ये वाली C3 है, अगर ये C3 है तो कितने वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। अब देखिए, दिस R1, जो R1 है वो मेरे हाथ में है, R2, R3 R4 चेंजेस द पोजीशन। अब देखिए R2, R3, R4 चेंजेस द पोजीशन, इसका मतलब ओनली वन वेक्टर विच रिमेन्स अनशिफ्टेड, दैट इज R1। तो यहाँ पे ओनली वन रिमेन्स अनशिफ्टेड। जो C2 है, C2 को जाके देखिए, यहाँ पे बीच में है। जब आप बीच में ये वाला, अब पूरा ध्यान दीजिए बेटा, पूरा ध्यान दीजिए बेटा, जब मैं बीच में यहाँ पे एक्सिस डालूंगा यहाँ से आएगा। अब इसको जब शिफ्ट करूंगा 180, आप देखिए जब मैं 180 शिफ्ट करूंगा यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, वापस आया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। इसका मतलब ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ऑल द 4 वेक्टर्स चेंजेस विद द C2 एक्सिस। तो C2 एक्सिस से सबके सब चेंज हुए, इससे जाके यहाँ पे लिखेंगे हम अनशिफ्टेड, कोई नहीं रहा, 0। S4 जो C4 है, C4 भी यहाँ पे जाके, क्योंकि मैं आपको इसके जरिए से नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन आपको पूरा बनाना पड़ेगा, वहां से आपके बीच में इसका जा रहा है क्या, C4 एक्सिस। मैं आपको वो डायग्राम वापस भेजूंगा आज आपको इसमें, ठीक है। तो C4 और फिर इसमें क्या है, सिग्मा भी है, तो इसमें जाके जो C4 प्लस सिग्मा, क्योंकि S4 इज एक्चुअली C4 प्लस सिग्मा, ये आपको देता है आपको डिफरेंट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पे जाके दिस इज प्रेजेंट, और यहाँ पे भी अनशिफ्टेड कोई नहीं रहता है। अब सिग्मा डी देखिए, सिग्मा डी देखिए, सिग्मा डी इज दिस वन। यहाँ से आप प्लेन डाल रहे हो, ये वाला प्लेन, और उस प्लेन में ये R1, R2 है, R3 है, R4 है। जब आप इनके दो के बीच में डाल रहे हो, इसका मतलब दिस वन एंड दिस वन विल रिमेन इन द प्लेन, तो एक तो ये रह जाएगा। अगर इस तरीके से करेंगे, यहाँ से ये वाला, नीचे से ये वाला प्लेन, तो ये दो रहेंगे किसमें, ये दो रहेंगे प्लेन में। तो 2 वेक्टर्स रिमेन्स अनशिफ्टेड विच आर इन द प्लेन एंड 2 रिफ्लेक्टर्स विद ईच अदर। देखो, अगर मैं ये वाला प्लेन डाल रहा हूं, ये दो रिफ्लेक्ट होंगे।
अगर ये वाला प्लेन डाल रहा हूं तो ये दो रिफ्लेक्ट होंगे। तो दो जो यहाँ पे है जो प्लेन के अंदर आ रहे दो वो यहाँ पे रहते हैं अनशिफ्टेड, ये आपके पास, ठीक है। 4 1 0 0 2, तो ये आपके पास है, आपको आना चाहिए। होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसके बाद है इसका टीडी का कैरेक्टर टेबल, वो आपको गिवन दिया हुआ होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। 3 टाइम्स G2, 6 टाइम्स S4 एंड 6 टाइम्स सिग्मा D। अब देखिए इसमें क्या क्या है, A1 है, A2 है, E है, T1 है, T2 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 2 3 एंड 3। फिर इसी तरीके से 1 -1 0 एंड 0, फिर 1 2 -1 -1, फिर यहाँ पे -1 0 1 एंड -1, फिर -1 0 -1 1। दिस इज द कैरेक्टर टेबल ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब देखिए बेटा इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से आपको क्या करना है, आगे रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे हम, रिडक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। व्हेन वी यूज द रिडक्शन फार्मूला तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे A1 कितनी बार है, A1, तो A1 के लिए हम निकालेंगे, वी यूज द स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला and we will calculate how many times this irreducible representation will be there, how many times will be this irreducible representation will be there। तो हम A1 के लिए निकालेंगे क्या, इसका क्या है पहले ऑर्डर विल बी, देखो ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेशन को आपको काउंट करना होता है। 1 8 और 1 हो गए 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इज ऑर्डर इज 24 फॉर दिस। तो मैं लिखूंगा 1/24, 1/h होता है, बहुत बार कर चुके हो, अब लिखने की जरूरत वैसे नहीं होनी चाहिए। 1/24, फिर क्या करना है, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, देखो क्या करना है, 1 × 4, 1 × 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है, 1 × 1 × 4 कितना हो गया 4, फिर प्लस समेशन है 1 × 8 × 1 हो गया 8, वो हो जाएगा 8 ही, फिर 1 × 3 × 0 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लिखने की जरूरत नहीं कि हमेशा मल्टीप्लाई 0 से होगा, इसलिए C2 एंड S4 हमेशा 0 होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब सिग्मा डी पे सीधे आ जाइए, ये हर एक के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए जिस रिडक्शन फार्मूला भी आप यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जाके देखो, मैं अगर करूंगा भी 1 × 3 × 0 0, 1 × 6 × 0 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इन दो को। अब सीधे 1 × 6 × 2 हो गए 12 प्लस 12, तो कितना बन गया 12, 12 प्लस 12 हो गया 24, ये हो गया 24 डिवाइड बाई 24, 1 यहाँ पे आया A1, 1 टाइम्स A1, ठीक है। इसी तरीके से आपके निकालेंगे क्या, A2 निकालेंगे, मैं सिर्फ 1 2 निकालूंगा और जो यहाँ पे आ रहे वही निकालूंगा, 1/24, फिर से 1 × 4 × 4 हो गया 4 प्लस, अब देखिए 8 × 1, सॉरी यहाँ पे A2 निकाल रहा हूँ, A2 1 × 8 × 1 हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए -1, सॉरी 1, ये 0, ये 2 हो जाएंगे 0, ये तो 0 हो जाएंगे, -1 × 6 × 2 हो गए -12, माइनस है ना, -1 × 6 × 2, 6 2 हो गया 12, 12 × -1 हो गया -12, तो 8 4 12, 12 - 12 हो गया 0, 0/24, मतलब कुछ भी नहीं, A2 0 टाइम्स। इसी तरीके से बेटा आप करेंगे E, वो भी 0 आएगा, E भी 0 आएगा, आप करेंगे T1, वो भी 0 आएगा। अब T2 देखिए आप, T2 के लिए 1/24, T2 यहाँ पे 3 × 1 × 4, 4 3 हो गया 12, 3 × 1 × 4 हो गया 12, 0 से मतलब ही नहीं कुछ, -1 0 से कुछ नहीं, -1 0 से कुछ नहीं, 1 × 6 × 2 कितना हो गया, 1 × 6 × 2 हो गया 12 प्लस 12, 12 × 12 हो गया 24, तो 24 ही आएगा। तो जब 24 आएगा तो 24/24 कितना हो गया, 1 टाइम्स T1, सॉरी T2। अब देखिए आपका जो टाउ सिग्मा आया, जो आपके पास टाउ सिग्मा आया वो क्या आया, वो आप देखिएगा, वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे पास टाउ सिग्मा फॉर टेट्राहेड्रल आया A1 + T2, ये आपको यहां से मिला, मैं मिटाऊंगा, मुझे कुछ चीजें मिटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा हमें क्या चाहिए और आपको क्या जरूरत है। अब
टाउ सिग्मा हमें चाहिए, टाउ सिग्मा हमें चाहिए, वो हमें मिला यहाँ से क्या, कितना, टाउ सिग्मा इक्वल टू A1 प्लस T2, ये हमें आया। अब देखिए इस कैरेक्टर टेबल अभी आधा ही है, इस कैरेक्टर टेबल को अभी दो लोब्स मैंने नहीं बनाए, एक तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, हाइब्रिडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके यहाँ पे है RX, RY, RZ, और यहाँ पे है इसका X, Y एंड Z। फिर आगे जो है फोर्थ वाला कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, दिस इज फोर्थ वन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ पे है इस वाले की केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे है ई के केस में, वैसे जरूरत नहीं लिखना ई का क्योंकि मुझे वो जरूरत ही नहीं है, 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, शायद आई थिंक सो, कामा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिखा है इस वाले की केस में एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स। देखो बेटा हमें किन चीजों की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में आपको वही चीज दिया रहता है जो आपको जरूरत है। हमें A1 और T2 की जरूरत है, बाकी हमें देखना ही नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास सिर्फ A1 और T2 है, इसलिए हमें A1 को देखना होगा और हमें T2 को देखना होगा, बस। बाकी बीच में क्या है उसके साथ हमारा कुछ भी नहीं है लेना देना, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे लिए जीरो आ गए। अब हमें सिर्फ देखना है A1 और T2। देखो बेटा जो A1 है, A1 के रेस्पेक्ट में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है और T2 के रेस्पेक्ट में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A1, A1 के रेस्पेक्ट में कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है और T2 के रेस्पेक्ट में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जरा देखिएगा आप इसको, आपको मैंने बता दिया है ये शायद लास्ट टॉपिक में, अगर आपको याद होगा, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इजी होगा। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास है कौन सा, A1 यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे T2 यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल। A1 के रेस्पेक्ट में देखिए, A1 के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हर एक साइड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पे सिमिलरली होगा, एक्स स्क्वायर साइड में भी वाई के एक्सिस के थ्रू भी और जेड एक्सिस के थ्रू भी होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब हम उसको लिखते हैं क्या, एस। इसकी सिमेट्री मैच होती है एस के साथ। T2 के रेस्पेक्ट में देखिए, एक्स हम यहाँ पे जाके ट्रीट, हमने ये पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन में, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। T2 के रेस्पेक्ट में दो चीजें आपके पास हैं, ये तीन एक साथ हैं और ये तीन एक साथ हैं। हमारे पास है T2, T2 इज द ट्रिपली डिजेनरेट, T2 इज द ट्रिपली डिजेनरेट, इसलिए जाके यहाँ पे तीन बार ये आ रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, ये क्यों आ रहा है एक्स वाई एंड जेड, बिकॉज दीज आर ट्रिपली डिजेनरेट। ये क्यों आ रहा है तीन लोब्स, क्योंकि ट्रिपली डिजेनरेट है, दैट इज व्हाई दे कम दिस वे। तो यहाँ पे एक है ट्रिपली डिजेनरेट, पी एक्स आ रहा है, पी वाई है, पी जेड है, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे जो डिजाइन, यहाँ पे जो शो कर रहा है, दिस इज इक्वल टू दैट ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड। यह हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा। इसी तरीके से एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज एक्चुअली डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये भी बता चुका हूं। देखो अगर यहाँ पे होता है ये वाला, देखो डी, ये जो 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो ये वाला है, दिस इज एक्चुअली डी जेड स्क्वायर, दिस इज डी जेड स्क्वायर एक्चुअली, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे जाके अगर आपको हर एक साइड से आपको मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब जाके उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, आपके दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको यहाँ तक की क्वेश्चन आएगा, डिराइव दिस टाउ सिग्मा फॉर टेट्राहेड्रल, यहाँ तो आपको यहाँ तक की क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ मिलाया। यहाँ तो आपको यहाँ तक की क्वेश्चन आ सकता है कि टाउ सिग्मा निकाल दो, तो टाउ सिग्मा आपने निकाला कि विद रेस्पेक्ट टू द A1 प्लस T2 इज एक्चुअली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन के लिए, जो टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए जो सिमेट्री इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज A1 एंड T2। रिमेंबर दिस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A1 एंड T2 आर द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए बेटा,
अब आगे हम देख रहे हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपको ये निकालना है पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड which atomic orbital is corresponding to A1 and which atomic orbital is corresponding to T2. हम यहाँ पे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन जाके कर रहे हैं इस वक्त कि A1 के रेस्पेक्ट में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है और T2 के रेस्पेक्ट में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है. A1 के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू द S and this is equal to Px, Py and Pz and also dxy, dyz, dzx. ये आप खुद भी देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कैरेक्टेबल खुद भी. तो हमारे पास अब पॉसिबिलिटी देखो, जब भी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट मस्ट कंटेन 1A1 एंड 1T2. मतलब sp3 हाइब्रिड सॉरी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए दैट मस्ट कंटेन A1, डेफिनेटली वहां पे A1 होना चाहिए. तो इसका मतलब दैट मस्ट कंटेन S एंड दैट मस्ट कंटेन आल्सो T2. T2 में आपको दो चीजें हैं, या तो होगा P3 तो बनेगा sp3, या तो होगा S तो जरूरी है दूसरी पॉसिबिलिटी क्योंकि S तो लेना ही लेना है, A1 प्लस T2 है, प्लस D3 भी हो सकता है क्योंकि ये DC कहलाएगा ये PC कहलाएगा, D3 एंड D3. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो SD3. दैट इज वाई अगर आपने ये पढ़ा होगा उस टाइम मैंने जरूर बोला होगा कि जब टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है कौन सा वाला, dxy, dyz, dzx. because they triply regenerate they are used for this hybridization for sd3. sd3 हाइब्रिडेशन के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, dxy, dyz एंड dzx. रिमेंबर दिस. आज आपके इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आ गया कि हाउ इट इज पॉसिबल. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि why d3, why not p. अब आपके पास दोनों अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री बोथ हाइब्रिडाइजेशंस आर पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है. बोथ द हाइब्रिडेशन आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री. सिमेट्री के हिसाब से दोनों के दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है. आप सिमेट्री के हिसाब से दोनों को टिक कर सकते हो. मतलब अगर आपको कहीं पे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इज दिस पॉसिबिलिटी, यस बोथ आर पॉसिबल. Only two possibilities are there. Only two possibilities are in case of tetrahedron geometry. One is sp3 and another is sd3. These two are possible on the basis of this symmetry. यहाँ तक क्लियर हुआ होगा तो अच्छी बात है. गलती कहीं पे रही होगी तो जरूर बोलिएगा. I will clear you. But मैंने ये क्वेश्चन पूरा दिखा दिया. अब देखिए आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के साथ ही. अब दो पॉसिबिलिटीज आपके पास है. सिमेट्री कंसिडरेशन इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री कंसिडरेशन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, सिमेट्री कंसिडरेशन कैन नॉट डिस्टिंग्विश किसको, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन sp3 एंड sd3. रिमेंबर दिस, sd3 इन दो को सिमेट्री डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है. इन दो को यहां पे जाके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. कौन सी, सिमेट्री कंसिडरेशन के साथ हम इन दो को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर दिस इक्विवेलेंट इसके हिसाब से. बट इन केस ऑफ CH4 हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगर आप देखेंगे sp3 को जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, CH4 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 नॉट sd3, नॉट sd3. ठीक है. अब मैं यही एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है. sd3 नॉट sd3 क्यों होता है, बिकॉज यहां पे जाके अगर आप देखेंगे एनर्जी के हिसाब से कार्बन के केस में जो 2p इसका यूज होता है, 2p ऑर्बिटल यूज होता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन. 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है दैट इज लोअर. 2p ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो है लोअर देन दैट ऑफ 3d ऑर्बिटल विच इज इन हायर एनर्जी. जो 3d ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा है. 3d ऑर्बिटल इज इन हायर एनर्जी. ये रीजन है इन केस ऑफ CH4 व्हाई देयर अकर्स sp3 नॉट sd3. सिमेट्री नहीं कह रही है, सिमेट्री के हिसाब से बोथ आर पॉसिबल इन केस ऑफ CH4 आल्सो, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. दिस इज द बेस ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की कंसिडरेशन हम कर रहे हैं. एनर्जी के कंसिडरेशन के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि सर 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी and 3d orbital is in higher energy. That is why they prefer lower energy orbital for hybridization, not higher energy orbital. That is why in case of CH4 the possibility is sp3 hybridization. Remember this. Okay.
Next example, in case of Mn4 negative or CrO4 2 negative, they have the hybridization of Sd3. इनकी जो हाइब्रिडेशन है वो है Sd3. क्यों है? Because मैग्नीज और क्रोमियम, मैग्नीज एंड क्रोमियम हैव 3d ऑर्बिटल इन लोअर एनर्जी. देखिए, आप खुद देखिए 3d ऑर्बिटल जब आप हाइब्रिडेशन देखते हो, क्योंकि वो आप उसको दिखाना आपको तो पता है 3d ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी, क्योंकि पहले 3d आता है बाद में 4p आता है एनर्जी में. पहले 3d आता है बाद में 4p आता है. तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीज एंड क्रोमियम है 3d ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी बट 4p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी. 4p ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी में है. दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे Sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ठीक है बेटा. अगर देखा जाए, इफ यू सी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, आपने एक बात वहां पे देखी, ये तो क्लियर हो गया, वाई Sd3, वाई sp3, वाई नॉट Sd3, वाई sp3 एंड वाई sp3, वाई नॉट Sd3, ये क्लियर हो गया आपको. एनर्जी कंसंट्रेशन मैंने आपको दी. बट अगर आप एक्चुअल देखेंगे बेटा, अगर आपको एमओटी याद होगी फर्स्ट सेम की, तो आपको एक चीज वहां पे भी याद आया होगा जब हमने एमओटी बनाया. आज जरूर देखिएगा उसको. वहां पे एक बात याद रखिए, वहां पे हमने एक चीज को डिस्कस किया था. वहां पे मैंने वहां पे बोला, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई, वहां पे मैंने पीडी मिक्सिंग बता दी. क्या बोली? पीडी मिक्सिंग. एक्चुअली प्योर नाइदर इट विल बी द sp3 hybridization nor it will be the Sd3 hybridization. Actually there is a pd mixing and the hybridization is actually sp3 hybridization. मैं इसे बताऊंगा. neither pure sp3, आप समझ गए होंगे सर क्या बोलने जा रहा है. neither sp3 nor Sd3, प्योर Sd3. प्योर में लिखूंगा इसको साथ, प्योर Sd3 हाइब्रिडाइजेशन. बट हाइब्रिडाइजेशन, ये दो क्वेश्चन मैंने आज आपको क्लियर किए, दो पढ़ाए एक साथ. बट देयर इज ए पीडी मिक्सिंग, देयर इज ए पीडी मिक्सिंग. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. तो प्रोफेशनल ये है, अगर आप ग्रुप 3 पढ़ चुके हो और एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, दिस हाइब्रिडेशन इज नाउ क्लियर. एक्चुअली एमओटी भी यही बता रहा है. एमओटी में भी वहां पे दिखा रहा है, जब आप वो डायग्राम बनाते हो उसमें फिर यहाँ पे दिखाते हो आप, ये वाला एनर्जी लेवल जो होती है वो इसको लिखते हो आप पीडी मिक्सिंग. देख लेना बुक्स पे भी ऐसा लिखा होगा पीडी मिक्सिंग. वो एक्चुअली नाइदर इट इज द प्योर Sd3, नाइदर इट इज sp3, बट इट इज द मिक्सिंग ऑफ द एनर्जीज. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन of this symmetry aspect of hybrid orbital and hybridization also. मैंने आपको दो क्वेश्चन में लाए, ध्यान दीजिएगा. दो क्वेश्चन है ये साथ साथ में, इसलिए ये इतना बड़ा है. एक क्वेश्चन है, पहले आपने निकाला टाउ सिग्मा मतलब कौन सी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए? टेट्राहेड्रल को. टेट्राहेड्रल को A1 एंड T2 जरूरी होना चाहिए. देयर मस्ट बी वन A1, देयर मस्ट बी वन T2. अगर T2 और भी होते, अगर 2-4 T2 होते, तो वहां पे आपको एक A1 लेना होता और एक T2, फिर आपको ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते. अभी आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे. तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें आपको देखना है एनर्जी कंसंट्रेशन. बस ये करना है हर एक एग्जांपल में. आप तो यहाँ पे आपको ये मगर देखना है कि प्योरली कि जो आपके पास है टाउ सिग्मा, यहाँ तक एक क्वेश्चन है. आगे आपको देखना है कि विद रेस्पेक्ट टू A1 हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी देयर एंड अकॉर्डिंग दिस T2 के कॉरस्पॉन्ड में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. एंड फिर पॉसिबिलिटीज निकालने हैं. फिर पॉसिबिलिटीज के बाद आपको एनर्जी कंसंट्रेशन से हाइब्रिडेशन बताना है. तो ये दो क्वेश्चन है, यहाँ तक एक क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो इस तरीके से बेटा आप इसको पढ़िएगा. कहीं भी दिक्कत आएगी आप मुझे पूछ सकते हो. अभी 3 मिनट है, मैं 3 मिनट